Good morning, student. Now this is the last video of the lesson that we are going to discuss. Till last video we have discussed. Till last video, students, we have discussed about the unification of Germany. Today we are going to discuss unification of Italy and Britain. So far as Italy is concerned, students, the country was divided. Italy, that today we know it as a nation, was divided in more than 300 states, but mainly it was divided into 7 major states, and only Sardinia Piedmont students was ruled by the Italian rulers or Italian prince, and rest students was under the Habsburg Empire and Bourbon dynasty of Spain. Okay, so unification of Italy was completed into 3 phases. The first attempt that was made to unify Italy was Gypsy Mazzini, who attempted to unify Italy in 1831 by attacking over Liguria, but he was not success in his attempt. So first phase of Italy unification, students, was completed by Mount Cavour students, who united the northern part of Italy, who was a great diplomatic leader. Okay? And later Garibaldi, who is known as a sword of Italy, moved directly to the South Italy, and with the help of Red Shirt, he succeeded to capture 2 states of Sicily, which was under the Bourbon dynasty of Spain. Or in this way, North and South Italy was unified. Okay, and there was the problem, students, in Italy unification was the central part of Italy, which was ruled by the Pope. ठीक है, इटली के यूनिफिकेशन में सबसे बड़ी जो बाधा थी वो सेंट्रल पार्ट ऑफ इटली था, विच वाज रूल्ड बाय द पोप, एंड एनी डिस्टर्बेंस विद द पोप स्टूडेंट्स मीन्स द रिलीजियस वॉर इन यूरोप. बट द पोप स्टूडेंट्स वाज सपोर्टेड बाय द फ्रेंच आर्मी, बट व्हेन देयर वाज द प्रूसिया एंड फ्रेंच वॉर in 1871, students, France called back his all armies from central part of Italy, and taking the advantage, Emmanuel II students attack over the central part of Italy, and without any resistance Pope surrendered there, and in this way the unification of Italy was completed. तो इस प्रकार से यूनिफिकेशन इटली का जो है वो कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स. 3 फेज में हुआ. पहला काबूर ने किया, दूसरा गरीबाल्डी ने किया, और तीसरा इमानुएल ने किया. ठीक है, बट जिप्सी मैज़नी स्टूडेंट्स इज नोन एज ए पॉयनियर ऑफ इटली यूनिफिकेशन. स्टूडेंट्स, लेकिन हम उनको पॉयनियर ऑफ इटली यूनिफिकेशन के नाम से जानते हैं. ठीक है, अब देखिए ब्रिटेन की जहाँ तक बात रही है स्टूडेंट्स, तो इट हैज़ वेरी स्ट्रेंज केस विद द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, बिकॉज द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन स्टूडेंट्स didn't come through the revolution or through the any mass uprising of people. Rather it is a long drawn out process students. बहुत लंबा वक्त लगा इसको यूनिफाइड होने में. Mainly the British Irish students was divided into 4 different group, है ना, ethnic composition students. The ethnic composition in Britain Irish was English, Scottish, Wales एंड आयरिश. ये 4 प्रकार के इथनिक समूह वहाँ पे थे स्टूडेंट्स. ठीक है, एंड एमंग दिज ऑल इंग्लिश वाज द मोस्ट पावरफुल. ठीक है, who succeed the students to get the. So the case of Britain students was very different. That was divided into 4 different ethnic group. ठीक है, इंग्लिश, स्कॉटिश, वेल्स एंड आयरिश, एंड एमंग ऑल इंग्लिश वेयर द मोस्ट पावरफुल. एमंग स्टूडेंट्स ऑल इंग्लिश वेयर द मोस्ट पावरफुल हु सक्सीड टू control over the parliament in 1688.
ठीक है। एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, सिंस द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश पर्सन, है ना, हु डोमिनेटेड द बेल्स स्टूडेंट्स एंड स्कॉटिश, दैट अंडर द यूनियन एक्ट ऑफ 1707, अंडर द यूनियन एक्ट ऑफ 1707, स्कॉटलैंड एंड बेल्स स्टूडेंट्स वाज incorporated by the British, that has named the students as the Great Britain. Okay students, in 1707, and there was the only one as Ireland which was completely separated. So Ireland students was dominated by two different ethnic group, Protestant and Catholic. So Protestant were in favor to come with the British, but the Catholic students wanted an independent nation. ठीक है, what due to the Protestant and with the help of Britain students under the Union Act of 1801 students, Ireland was incorporated, that finished the unification of Britain. और इससे unification of Britain जो है वो फिनिश हो गया। चलिए, तो दोनों का आप देख लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स कि व्हेन द नेशन वाज क्रिएटेड हाउ इट वाज विजुअलाइज्ड। ठीक है, राष्ट्र बन गया तो राष्ट्र का विजुअलाइजेशन क्या था? तो यूजुअली इन 18th सेंचुरी स्टूडेंट्स मेनी ऑफ द आर्टिस्ट स्टूडेंट्स पर्सनफाइंग, है ना, द नेशन बाय द एलोगेरी ऑफ बोमेन एलोगेरी। तो एलोगेरी क्या है? व्हेन वी रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स एनीथिंग थ्रू द लिविंग is known as a allegory. So mainly there was the time students when each and every nation was visualized through the female allegories. So the personifying students which was adopted to represent a nation does not have any resemblance with the living or dead person, है ना। तो जिस महिला को दिखाया जाता है, जैसे अब हम देखिए भारत माता का तस्वीर देखते हैं, आप इतने गॉड्स का देखिए, दुर्गा है, सरस्वती हैं, शिव हैं, राम हैं, है ना, जो भी हैं, तो आप देखिए कि उन तरह का तस्वीर या उस तरह का इंसान हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। जिस तरह से कृष्ण का रूप हम फोटो में देखते हैं, उस तरह का रियल में कोई व्यक्ति नहीं दिखता है। तो ठीक उसी प्रकार से इसे भारत माता का इमेज है, तो उस प्रकार की महिला हमें दिखती नहीं है कहीं पे। ठीक है, तो ऐसे ही एलोगेरी का उपयोग किया जाता था, जो डेड और लिविंग कहीं पे वैसा नहीं हो। ठीक है, तो द एलोगेरी स्टूडेंट्स ऑफ फ्रांस वाज नॉन एज ए मैरिने एंड एलोगेरी ऑफ जर्मनी वाज नॉन एज ए जर्मेनिया। ठीक है, चलिए, तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेशन, विजुअलाइजिंग ऑफ द नेशन। अब देखिए एक टॉपिक और है स्टूडेंट्स, टेंशन ऑफ वैल्कन। देखिए स्टूडेंट्स, वाल्कन जो है प्रेजेंट डे, है ना, कंसिस्ट स्टूडेंट्स क्रूसिया, मैसेडोनिया, बुल्गारिया, है ना, ये सारे राष्ट्र उस समय वाल्कन का हिस्सा थे स्टूडेंट्स। A large part of Balkans comes under the Ottoman Empire which began in the 19th century। तो इस पे सारा कब्जा जो था ऑटोमन एम्पायर का था। ठीक है, जो 19th सेंचुरी में काफ़ी कमज़ोर हो गया था। आपने देखा ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस में, ग्रीक 1832 में स्टूडेंट स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। तो मेनी ऑफ द स्टेट व्हेन द आइडिया ऑफ रोमांटिसिज्म रीच टू द वाल्कन स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ द स्टेट वांटेड टू बी फ्री फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर, but there was the problem that each and every state students were jealous to one another। प्रॉब्लम ये था कि हर स्टेट एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, एंड एवरी स्टेट वांटेड टू इनकॉर्पोरेट द अदर स्टेट, और हर स्टेट चाहता था कि हम दूसरे को कब्जा कर लें। दैट वाज द प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम था वहाँ पे। ठीक है, तो ये हम देखते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो दैट मेक द एरिया वेरी कन्फ्लिक्ट, और इससे क्या हुआ कि एरिया काफ़ी कन्फ्लिक्ट होते चला गया। It became more worse students when all the Western power, Russia, Britain, Germany, jump into the Balkan to have their own colonies। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है इम्पेरियलिज्म से भी जुड़ा हुआ है कि हाउ नेशनलिज्म लीड टू द इम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म ने इम्पेरियलिज्म को कैसे अथी किया, है ना। तो जो बिग पावर थे स्टूडेंट्स ऑफ वेस्टर्न पावर, रसिया, प्रूसिया, जर्मनी, है ना, ब्रिटेन, दे ऑल जंप इनटू द वाल्कन स्टूडेंट्स टू हैव देयर ओन कॉलोनीज, है ना। तो टेंशन स्टूडेंट्स ग्री, और अल्टीमेटली इट लीड द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और यही टेंशन जो वाल्कन का था वो धीरे धीरे स्टूडेंट्स फर्स्ट वर्ल्ड वार में तब्दील होते चला गया। ठीक है, बस यही टॉपिक थी स्टूडेंट्स।
अगर आपकी इच्छा होगी तो हम एक लाइव क्लास लेंगे जिसमें डाउट स्टूडेंट्स आपका क्लियर हो जाएगा पूरे चैप्टर का। अगर कोई समस्या होगी तो आप पूछ लोगे। ओके, हैव ए नाइस डे।